हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिक्स इन डेप्थ। हमारा आज का टॉपिक है सर्कुलर मोशन एंड दिस इज सेकंड वीडियो ऑफ सर्कुलर मोशन। इन द फर्स्ट वीडियो वी टॉक्ड अबाउट सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल फोर्सेस एंड एक्सेलरेशन, और आज के वीडियो में हम सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, ओके, बेस्ड ऑन सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आई रिकमेंड कि यू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट बिफोर यू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। Okay, so let's start. The first question for today is this. Let's say a particle is performing circular motion, and these are y and x axis. Particle is somewhere here. At this instant, particle is here and moving in this direction with velocity v. Okay. और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो अभी हैं 0,2, x axis, y axis, 0,2 coordinates. Given that net acceleration at this instant is 2I cap minus 4j cap at this instant. And the question is find, first question is find speed, and second tangential acceleration. Tangential acceleration. So pause the video and try this question on your own. तो चलिए देखिए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि जो क्या बोला स्पीड है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा स्पीड इज इक्वल टू 2√2 and tangential acceleration is equal to 2. Okay, this is the answer. Let's see how, कैसे आएगा ये। तो आप देखो वेलोसिटी किस तरफ है अपना, वेलोसिटी यहाँ पे, पार्टिकल अभी यहाँ पे है और वेलोसिटी जो है वो आई कैप में, एक्स में है ना, एक्स का मतलब वेलोसिटी आई कैप में है। और जो एक्सेलरेशन है वो कैसे, उसको ड्रॉ करें एक्सेलरेशन को, तो एक्सेलरेशन है 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप। सो एक्सेलरेशन इज लाइक दिस कि 2 तो आई कैप में है और 4 माइनस जे कैप में है। अब मुझे आप ये बताओ कि इनमें से कौन सा एक्सेलरेशन टेंजेंशियल है और कौन सा एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल है। तो इट्स ऑब्वियस कि जो 2 है दिस वन इज टेंजेंशियल, बिकॉज ये एक्स एक्सिस में है और वेलोसिटी भी एक्स एक्सिस में है, और एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के अलोंग होता है दैट इज टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 2, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो अपना आएगा at is 2. And now for the first question, we know that centripetal acceleration is given by this expression v square by r, and here centripetal acceleration is 4 because जो perpendicular है वही होता है centripetal, and this is pointing towards center also. तो v square by r, and what is radius here? Radius is 2 because ये particle 0,2 पे है, that means कि इसका radius जो है वो 2 के इक्वल होगा। So we got v square equal to 8 and speed is 2√2 meter per second. Okay. Let's solve another question. Okay, so this is the question. Kinetic energy of a particle moving along a circular path of radius r is given by k equals to as square, where s is distance and a is a constant. So k is what? Kinetic energy here, which is half mv square. Then the net force acting on the particle as a function of s is. So net force निकालना है, आपको 4 options दिए गए हैं. Pause this video and try this question. Okay. So the answer is B. In fact, ये answer B guess करना तो बहुत easy है. Why? Because I know that net force is going to be this. Net force is equal to root over F tangential square plus F centripetal square. ये certainly होगा net force.
राइट। तो रूट जैसा टर्म तो खाली ऑप्शन बी में ही आ रहा है, और तो किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा है ना, तो आंसर तो हम डायरेक्टली बोल सकते थे। चलो आप पूरा सॉल्व करते हैं इसको अपन। सो देखो व्हाट वी आर गिवन हियर, वी आर गिवन k इक्वल्स टू as square, and kinetic energy you know is half mv square equals to as square. So we got v square equals to 2as square upon m. We got v square, so therefore we can find v also. V आएगा root over 2a by m into s, root 2a by m into s. अब हम क्या करेंगे, हम जो f टेंजेंशियल है वो निकालेंगे, और फिर f सेंट्रीपिटल निकालेंगे, और फिर ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, उससे हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स फाइंड f टेंजेंशियल फर्स्ट, और f सेंट्रीपिटल दैट इज इजियर। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv square by r, so m by r multiplied by v square. Let's see what was v square. V square was 2as square by m. 2as square by m, यहाँ पुट करें फिर 2as square by m. So m cancel हो गया and we get 2as square divided by r. ठीक है, this is f centripetal. Now f tangential. So f tangential होगा mass into tangential acceleration, and you know that tangential acceleration of d by dt of v, जहां v का मतलब है मेरा मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, मॉड v है ना, मैं मॉड v को v ही लिख रहा हूं एक बार। ओके, सो इससे आएगा m इंटू डी बाई डी टी ऑफ, एंड व्हाट वाज एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी, देखो हमने क्या लिखा था यहाँ पे स्पीड का, रूट टू ए बाई एम इंटू एस, है ना, तो इसको यहाँ पुट करते हैं अपन, रूट वेट रूट टू ए बाई एम multiplied by s. Now here this root 2a by m will come out of this because it's a constant, बचेगा ds by dt. But what is ds by dt? s यहाँ पे क्या है, distance, and what is rate of change of distance? Rate of change of distance तो speed ही होता है, तो ये तो speed आ जाएगा into v, and let's again put value of v, so this into v, और v था यही root 2a by m into s, देखो से क्या आएगा, रूट एम एम से हो जाएगा कैंसिल, सो इट इज 2as. Okay, in fact we could find tangential acceleration like this also, that if tangential acceleration is dv by dt, what if we multiply and divide with ds, and then this ds upon dt becomes v, so a tangential is v dv by ds, and I'm sure you are familiar with this expression from kinematics, a is v dv by dx, है ना, तो ये चीज यहाँ पे हम टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और स्पीड के लिए लिख सकते हैं, a tangential is v dv by ds. Keep in mind this v is only the magnitude, not vector, because जैसे ही आप वेक्टर देखोगे तो it will become a net, है ना, because वेक्टर के अंदर डायरेक्शन वाला पार्ट भी आएगा, सेंट्रीपिटल वाला पार्ट भी आएगा, हम केवल बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड्स की। Okay, so we got f centripetal, we got f tangential, so net force जो है that will be root over f centripetal square plus f tangential square, और अब जो अपने को आंसर दिया था वो मिल जाएगा, if you take 2as, बाहर ले लोगे 2as तो अंदर क्या बचेगा, एक तो 1 बचेगा, और दूसरा ऑफ कोर्स s स्क्वायर बाय r स्क्वायर, या 1 प्लस s स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ओके, ओके, चलो अभी काम करते हैं, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और स्पीड में जो फॉर्मूला अपने को दिख रहा है, इट 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 रिमाइंड्स अस ऑफ काइनेमेटिक्स, राइट, मोशन बंडी, तो क्यों ना हम इसके इसके फॉर्मूले को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके देखते हैं। If tangential acceleration is constant, and this is not a question now, it's a concept which we are learning. If tangential acceleration is constant, let's say its magnitude is at, so a tangential is dv upon dt,
And if I write it like this, dv is a tangential into dt, and if I integrate both sides, let's say at t equal to 0 speed is u, and at t equal to t speed is v. ओके, लिमिट इस तरफ आएगी t की, इस तरफ आएगी v की, तो 0 पे u, t पे v. इफ वी इंटीग्रेट dv, तो इसका तो जो इंटीग्रल है वो v आएगा, एंड व्हेन यू पुट लिमिट्स इट विल बिकम v माइनस u. और देखो यहाँ पे बिकॉज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इट कम्स आउट ऑफ इंटीग्रेशन, and integration of t dt is just t, and when you put limits so it will be t minus 0. So देखो हमें क्या मिला, v equals to u plus a tangential into t, and this is just like the first equation of kinematics, v equal to u plus at, है ना, this equation. अब देखो इक्वेशन की फॉर्म तो बिल्कुल सेम है, बट डिफरेंस है, ये हम स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए लिखते हैं व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. हमारे यहाँ पे एक्सेलरेशन का केवल मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है. आई शुड पॉइंट दिस आउट हियर, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, बिकॉज़ डायरेक्शन तो कांस्टेंट नहीं होगा ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ साथ मुड़ेगा वो भी, है ना, तो उसका भी कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज होता जाएगा. ओके, सो only the magnitude of tangential acceleration is constant. So such equations can be written for speed and tangential acceleration the way you write for velocity, net velocity and net acceleration in motion in 1D. वैसी equation आप speed और जो ये है a tangential उसके लिए लिख सकते हो. And then अगर ये equation आई है तो इसके बाद में आप जानते हो, अगर आप v को लिखो ds by dt तो भी ये equation भी आएगी कि distance covered equals to ut plus half at into t square, जहां पे s हो जाएगा distance covered on the circular path. In fact, distance covered on any path, as long as you have tangential acceleration magnitude constant, you can use this. And then you can use this also, v square equals to u square plus 2as, so a tangential multiplied by s. ठीक है, तो ये इक्वेशंस यूज की जा सकती है. And what if tangential acceleration is not constant? अगर नहीं कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम इस इंटीग्रेशन के अंदर पुट करेंगे उसको, और पुट करके सॉल्व करेंगे उसको हम. वी विल हैव टू इंटीग्रेट देन, बस इतना ही है. और कांस्टेंट है तो ये इक्वेशन लिखी जा सकती है. यहाँ पे ध्यान देना, s इज डिस्टेंस, बिकॉज v जो यहाँ पे होगा वो ds by dt करोगे तो ये स्पीड है विच इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, नॉट डिस्प्लेसमेंट. तो अगर सपोज एक पार्टिकल सर्कल में चल रहा है, उसका एक रेवोल्यूशन पूरा हो गया, तो s को आप कितना लोगे, 2 पाई r, 1 रेवोल्यूशन के लिए. ओके, s को 0 नहीं पुट करोगे. ओके, सो ये इक्वेशन मोशन इन 1D वाली से थोड़ी सी अलग है, दिखने में सेम है लेकिन मीनिंग अलग है s के. मोशन इन 1D में s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ s का मतलब है डिस्टेंस, और यहाँ v का मतलब है केवल स्पीड, u का मतलब है इनिशियल स्पीड, एंड at का मतलब है ओनली टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, नॉट नेट एक्सीलरेशन. इनफैक्ट नेट एक्सीलरेशन लिख के आप ये इक्वेशन नहीं लिख सकते, because net acceleration will not be constant, at least डायरेक्शन में तो कांस्टेंट होगा ही नहीं, so this cannot be written. Okay, all right, so let's solve one more question now based on this which we have just learned. Okay, this is the question. A particle starts from rest and moves along a circular path of radius 2 meter with tangential acceleration 1 meter per second square. Okay, so initial speed 0 है, ध्यान रखना, starts from rest. Find, first is time after which net acceleration makes a 60-degree angle with velocity. और second है angle between net acceleration and velocity after half revolution. Okay, ये दो questions हैं. So pause the video and try this question. And try to use the equations that we just wrote, because tangential जो acceleration है उसका magnitude constant है, so those equations can be used. Okay, so try it. Okay, so answers are, first का आंसर होगा t equals to root over 2 root 3, और सेकंड का जो आंसर है वो आएगा tan inverse 6.28.
tan इनवर्स 6.28। ठीक है, ये इसके आंसर्स हैं। तो लेट्स सी, इसको सॉल्व करते हैं अपन। आपसे अगर सॉल्व हुआ तो बहुत बहुत अच्छी बात है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स सी। देखो, सपोज ये पार्टिकल का सर्कुलर पाथ है, और मान लो पार्टिकल जो है वो स्टार्ट इस पॉइंट से हो रहा है, यहाँ से उसने स्टार्ट किया है। अब देखो, किसी भी पॉइंट पे आप जब पहुंचोगे, ये मान लो t इक्वल टू 0 है, आप मान लो इस पॉइंट पे पहुंचे, इस पॉइंट पे जब पार्टिकल आएगा यहाँ पे, तो वेलोसिटी और नेट एक्सीलरेशन में एंगल कैसे बताएंगे हम? सो देखो, वेलोसिटी तो हमेशा होनी है टेंजेंशियल, है ना, वेलोसिटी तो इसकी इस तरफ होनी है यहाँ पे। और एक चीज और, जिस तरफ वेलोसिटी है उसी तरफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी है, तो v भी इस डायरेक्शन में है और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी इस डायरेक्शन में है। ओके, अच्छा, अब जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है वो किस तरफ होगा? तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो है वो हमेशा सेंटर की तरफ पॉइंट करने वाला है, सो दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ए सेंट्रीपिटल। तो बताओ नेट एक्सीलरेशन कैसा होगा? तो नेट एक्सीलरेशन जो है वो टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल का रिजल्टेंट है, तो उनके बीच में कहीं पे आएगा, तो मे बी समथिंग लाइक दिस, दिस इज नेट एक्सीलरेशन। ओके, अब एक चीज देखो आप, नेट एक्सीलरेशन का एंगल वेलोसिटी के साथ निकालो या निकालो विद टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, दोनों सेम ही आएंगे, है ना, बिकॉज v और a टेंजेंशियल सेम डायरेक्शन में है। तो जो दोनों ही क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया कि एंगल बिटवीन नेट एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी, उसको अब आप यू पढ़ो कि एंगल बिटवीन नेट एक्सीलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, है ना, बिकॉज v एंड at आर इन सेम डायरेक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में कह रहे हैं कि ये एंगल 60 करना है। तो देखो, अब मेरे को तो ये दिख रहा है कि दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, इसको एक बार यूं ड्रॉ करो, देखो आप जरा, लाइक दिस, कि सपोज ए टेंजेंशियल इस तरफ है, ए सेंट्रीपिटल इस तरफ है, और जो ए नेट है वो इस डायरेक्शन में है, दिस इज ए नेट। वेट, ए सेंट्रीपिटल, ए टेंजेंशियल एंड दिस इज ए नेट। और हमें बताना केवल ये है कि 60 डिग्री एंगल कब बनेगा। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं अपन इसको। तो देखो, आप जानते हो रिजल्टेंट अगर 60 एंगल फॉर्म कर रहा है तो tan 60 कितना होगा? ये मैं बेसिक वेक्टर सम को यूज कर रहा हूँ। tan 60 होगा दिस कंपोनेंट अपॉन दिस कंपोनेंट, यानी कि tan 60 होगा a सेंट्रीपिटल डिवाइडेड बाय a टेंजेंशियल, राइट? दिस कंपोनेंट बाय दिस कंपोनेंट इज tan थीटा, and what is tan 60? root 3, and centripetal is v square by r, and tangential जो है वो होता है, वो है 1, इस क्वेश्चन में दे रखा है at is 1, so we are getting this that v is root over 2 root 3, है ना, बिकॉज r की वैल्यू 2 दे रखी है मैंने आपको, पहले देखो, रेडियस इज 2, at is 1, तो r is 2 when you bring r here, so v is root over 2 root 3। ये अपने को स्पीड मिला। अब देखो, अब देखना मैं कौन सी इक्वेशन मैं इसमें यूज करूंगा, मेरे को टाइम निकालना है। सो नोटिस दैट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, 1 है, और कांस्टेंट है तो कैन आई यूज दिस इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस a टेंजेंशियल इनटू t? यस, ऑब्वियसली आई कैन यूज दिस, सो लेट्स यूज दिस, v इक्वल्स टू u प्लस a टेंजेंशियल इनटू टाइम। So v is root over 2 root 3, u is 0, a tangential is 1, t अपने को फाइंड करना है, so we get t is root over 2 root 3। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट का अपना आंसर हुआ। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में मैंने ये पूछा आपसे कि एंगल बिटवीन नेट एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन, हाफ रेवोल्यूशन। ओके, सो पार्टिकल पहले यहाँ पे था, शुरुआत यहाँ से की, बाद में पार्टिकल यहाँ पे आ चुका है। ओके, यहाँ पे आने पे कितना एंगल होगा? तो ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस। अगेन अपने को एंगल निकालना है बिटवीन ए नेट एंड वी, तो इसका मतलब ए नेट एंड ए टेंजेंशियल, इनके बीच का एंगल फाइंड करना है, एंगल बिटवीन दीज टू, बिकॉज ए टेंजेंशियल इज अलोंग वेलोसिटी। सो ए टेंजेंशियल तो हमेशा इक्वल टू 1 ही आएगा,
राइट। अब देखते हैं हम कि ए सेंट्रीपिटल जो है वो कितना आएगा। तो ए सेंट्रीपिटल विल बी वी स्क्वायर बाय आर। ओके, और वी को हम क्या पुट करें? सो अब देखो, बिकॉज मेरे को इसमें डिस्टेंस दी गई है, राइट, टाइम नहीं दिया गया है सेकंड पार्ट में, तो क्यों ना ये यूज कर लें इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 280 मल्टीप्लाइड बाय एस। सो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू इज 0, ए टेंजेंशियल इज 1, और डिस्टेंस कितना आएगा? डिस्टेंस आएगा पाई आर, राइट, बिकॉज हाफ रेवोल्यूशन में आप जानते हो डिस्टेंस इज पाई आर। सो इसको यहाँ पुट करें, वी स्क्वायर को यहाँ पुट करेंगे तो अपने को ए सेंट्रीपिटल जो है वो मिलेगा वी स्क्वायर अपॉन आर, अपॉन करेंगे तो ए सेंट्रीपिटल आएगा 2 पाई। ठीक है, और अब देखो, लेट्स से वी हैव ए टेंजेंशियल इन दिस डायरेक्शन and a centripetal in this direction, right? And this is a net जो इनके बीच में कहीं होगा। अब इस a net का एंगल विद टेंजेंशियल, बिकॉज वेलोसिटी भी इस तरफ ही है, तो अगेन वही बात, tan थीटा विल बी इक्वल टू, इन दोनों का वेक्टर सम ही तो है, तो tan थीटा आएगा दिस कंपोनेंट बाय दिस कंपोनेंट, यानी कि a centripetal अपॉन a टेंजेंशियल। So tan theta will be a centripetal is what, 2 pi, and a tangential is 1, 2 pi is 6.28, so हमारा आंसर आएगा tan inverse 6.28। ओके, तो ये इसका आंसर है। अब इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और जिसमें दे ऑलवेज आस्क अबाउट नेट एक्सेलरेशन and you are given something about tangential or centripetal, and there are many such questions in Irodov, and some of those questions you will find in the assignment which I'm going to upload, and you can find the link to that assignment in the description of this video. Okay, now let's shift our attention to force. अभी तक हम बात कर रहे हैं केवल acceleration की, ठीक है। अब हम एक्चुअली में जो रियल फिजिकल केसेस होते हैं सर्कुलर मोशन के, उनको समझते हैं अपन थोड़ा। तो देखो, ये एक स्ट्रिंग है जिसको आपने यहाँ से हैंग कर रखा है, और स्ट्रिंग के लोवेस्ट पॉइंट पे आपने एक मास को हैंग कर रखा है। दिस मास इज m and length of string is l, length of string is l। initially ये रेस्ट पे है, initially at rest। ओके, अब क्या करोगे आप, इनिशियली तो रेस्ट पे है, आप इसको एक जर्क दोगे इस तरफ, एक इंपल्स दोगे ताकि ये मूव करना शुरू हो जाए। लिखें एन इंपल्स इज गिवन टू द बॉल so that it starts moving with speed √2gl। ठीक है, तो हमने इसको इंपल्स दिया, एक जर्क दिया, और उसके ठीक बाद में, मतलब तुरंत बाद में स्पीड हो गई √2gl। तो स्ट्रिंग का पोजीशन यही होगा जस्ट आफ्टर द इंपल्स इज गिवन, लेकिन स्पीड जो है वो √2gl एक्वायर करती होगी इस बॉल में। क्वेश्चन इज फाइंड रेशियो ऑफ टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग, find ratio of tension in the string after and before the impulse is given. So after and before, so you should pause this video and solve this question before the impulse is given. Okay, so try this. Okay, so answer is 3:1,
1। ठीक है, कैसे देखो, जब आपने इम्पल्स नहीं दिया, मतलब ये वाला केस, जब वो रेस्ट पे है, तब उस पर टेंशन कितनी आएगी? तो ऑब्वियसली जब ब्लॉक रेस्ट पे है, ये बॉल जब रेस्ट पे है और इसका हम एफबीडी बनाएं, तो एफबीडी में फोर्सेस कौन कौन से आएंगे इस पे? एक फोर्स तो आएगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो हमेशा आता है। एक फोर्स आएगा टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में। एंड दिस इज तब जब ये रेस्ट पे है, एट रेस्ट। तो एट रेस्ट है, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो करेंगे तो अपने को मिलेगा कि टी माइनस एम जी जीरो कर दो। तो इनिशियल टेंशन जो है, लेट्स कॉल दैट टी आई नाउ, यहाँ भी टी आई ड्रॉ कर लेते हैं उसको। टी इनिशियल इज इक्वल टू एम जी। ओके, अब देखते हैं इम्पल्स देने के बाद इसकी स्पीड क्या हो जाएगी। तो देखो, इम्पल्स देते ही पहली चीज तो ये है कि इसका मोशन कैसा होगा। इसका मोशन जो है वो सर्कुलर होगा, दैट मच वी नो, बिकॉज स्ट्रिंग की लेंथ चेंज तो हो नहीं सकती है ना। ये बॉल तो आगे जाना चाहेगी ताकि लेंथ बढ़ जाए स्ट्रिंग की, बट ये हम मान रहे हैं कि स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो रही, तो मोशन इज सर्कुलर। अब देखो, अब ये केस ऐसा है, दिस बॉल इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद स्पीड v, और अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, बस मूव करना ही है, इसका ऐसा पाथ बनने वाला है। ओके, अगेन लेट्स ड्रॉ एफबीडी। तो इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आएगा टेंशन, लेट्स कॉल दिस टी एफ फाइनल टेंशन, और डाउनवर्ड में फोर्स आएगा mg। अब देखो, फोर्स बैलेंस नहीं करना, ये नहीं कर देना कि फिर से टी इक्वल टू एम जी, क्योंकि अब सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि सेंटर की तरफ जो फोर्स आता है ना, वो इक्वल टू जीरो नहीं होता, वो इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। बिकॉज ये जो बॉल है ना, ये मुड़ने वाली है अभी, और मोड़ने के लिए नेट फोर्स चाहिए ना अपने को, राइट? तो देखो, इसका सेंटर कहाँ होगा? इसका सेंटर यहाँ होगा। तो इस तरफ नेट फोर्स कितना आएगा? इस तरफ नेट फोर्स आएगा टी फाइनल माइनस एम जी, और इसको इक्वेट करेंगे हम एम वी स्क्वायर बाई आर से। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? एफबीडी बनाओ, ड्रॉ ऑल द नेचुरल फोर्सेस, और टोटल फोर्स जो आपको दिख रहा हो सेंटर की तरफ, उसको एम वी स्क्वायर बाई आर से इक्वेट करो। So T final minus mg. Now we will just solve. mv square is 2gl because v was root 2gl, and radius is l here because center ये है and length of string was l, so 2mg, and therefore final tension is 3mg. So if you find the ratio, initial tension was mg, final is 3mg, so ratio is 3:1. Okay, let's solve one more question just like this. Okay, this is the question. देखिए, एक स्ट्रिंग और उसके लोवेस्ट पॉइंट पे हमने एक बॉब को अटैच कर रखा है, और इसका एंगल वर्टिकल से थीटा बन रहा है, और यहां से हमने इसको रिलीज कर दिया, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल टू 0। फाइंड क्या करना है? टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन स्ट्रिंग इज रिलीज्ड। इसका मतलब इनिशियली t इक्वल टू 0 पे स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी छोड़ने के तुरंत बाद। ऑल्सो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 0। एंड थर्ड इज टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन स्ट्रिंग बिकम्स वर्टिकल। ओके, तो जब इस वर्टिकल बन जाएगी तो कितनी टेंशन होगी। सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। ओके, सो आंसर्स ये हैं। फर्स्ट का आंसर होगा टेंशन इज mg cos थीटा। सेकंड का आंसर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज g sin थीटा। और थर्ड में टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन स्ट्रिंग बिकम्स वर्टिकल, उसका आंसर ये होगा 3mg minus 2mg cos थीटा। ओके, ये आंसर्स हैं। सो लेट्स सॉल्व दिस। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी गुड बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत से लोग एक कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक करते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो देखो, ये स्ट्रिंग है ऐसे, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी विल ड्रॉ एफबीडी फर्स्ट। तो ये जो बॉल है, इसके एफबीडी में फोर्सेस हैं, एक तो एमजी फोर्स डाउनवर्ड में, और एक है टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में, और ये एंगल थीटा है। ओके, अब देखो, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? फोर्सेस को ब्रेक कैसे करेंगे हम? हमें क्या, एक बात हो, इसको छोड़ने के तुरंत बाद में इसका मोशन कैसा होगा? हम जानते हैं इसका मोशन सर्कुलर होगा, ठीक है, दैट मच वी नो फॉर श्योर, बिकॉज स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो सकती। लेंथ चेंज नहीं होगी तो मोशन सर्कुलर होना ही पड़ेगा इसका। और सर्कुलर मोशन है तो फिर हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है? हम हमेशा ये देखते हैं कि सेंटर की तरफ कितना फोर्स आ रहा है टोटल, उसको करते हैं इक्वेट एम वी स्क्वायर बाई आर से, और जितना फोर्स आ रहा होगा टेंजेंट के अलोंग, उसे करेंगे इक्वेट मास इनटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन से। ठीक है,
सो देखो ये जो टी जो स्ट्रिंग है ना बेसिकली वो रेडियस है ना, तो फोर्सेस को हम ब्रेक करेंगे एक तो इस लाइन के अलोंग बिकॉज ये हो जाएगी सेंटर वाली लाइन, और एक इसके परपेंडिकुलर ये हो जाएगी टेंजेंट, है ना। दिस इज रेडियल लाइन एंड दिस इज टेंजेंशियल लाइन। तो देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। mg का इधर जो कंपोनेंट है वो आएगा mg cos थीटा, और mg का इस तरफ जो कंपोनेंट है वो आएगा mg sin थीटा। अब बताओ कि सेंटर की तरफ आपको कितना फोर्स दिख रहा है। तो सेंटर की तरफ एक फोर्स तो है T, और mg cos थीटा बाहर की तरफ है, राइट। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर विच इज सेंट्रिपिटल वो आएगा T माइनस mg cos थीटा। बट वी नो दैट कि टुवर्ड्स सेंटर फोर्स हमेशा होना चाहिए mv स्क्वायर बाई r। अब बताओ इस इंस्टेंट पे v कितना है अपना। तो इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी जो है वो जीरो है बिकॉज आपने रेस्ट से रिलीज किया है तो जीरो है। सो मेक दिस जीरो, और जैसे इसको आप जीरो पुट करोगे तो टेंशन जो है वो मिलेगा अपने को mg cos थीटा, which is the answer of the first question। एंड सिमिलरली अब देखो कि टेंजेंशियल फोर्स कितना है, टेंजेंट की तरफ कितना फोर्स आ रहा है। तो देखो दो ही फोर्स थे, एक टेंशन और एक mg। टेंशन का तो कोई भी कंपोनेंट आएगा नहीं अलोंग टेंजेंट बिकॉज टेंशन जो है वो रेडियस के अलोंग है। तो टुवर्ड्स टेंजेंट एक ही फोर्स है mg sin थीटा, दैट इज आवर टेंजेंशियल फोर्स। और इसको इक्वेट करो मास इनटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन से। सो m से m कैंसिल एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज g sin थीटा। इनफैक्ट अब इसकी जो स्पीड बढ़ना स्टार्ट होगी धीरे धीरे इस बॉल की, वो इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के कारण ही स्पीड बढ़ना स्टार्ट होगी। ओके। अब देखो इसमें एक गलती क्या होती है बहुत से स्टूडेंट से, वो क्या करते हैं, वो ऐसे करते हैं कि ये स्ट्रिंग है ना और यहाँ पे बॉल है, एफबीडी तो ठीक बनाते हैं बिल्कुल, टेंशन इधर और एमजी इधर। फिर वो ये कहते हैं कि हम क्यों ना टेंशन को ब्रेक कर लें, और ये एंगल भी देखना थीटा ही आएगा ना बिकॉज ये थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। तो ये एंगल थीटा होता है। वो ब्रेक करते हैं टी को। टी को ब्रेक करेंगे तो इधर जो कंपोनेंट है वो आएगा टी कॉस थीटा, और इधर जो कंपोनेंट है वो आएगा टी साइन थीटा। ऑल राइट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ कोर्स आप किसी भी तरफ फोर्स को रिजॉल्व कर सकते हो, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दैट। बट अब इसके बाद में जो स्टेप है उसमें गलती करते हैं। इसके बाद वो ये लिखते हैं कि बिकॉज ये अभी रेस्ट पे है तो वर्टिकल फोर्स को वो जीरो कर देते हैं, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, और उससे उनका आंसर आता है टी इक्वल टू एम जी बाई कॉस थीटा। एंड दिस इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। व्हाई इट इज रॉन्ग? ठीक है, बिकॉज देखो ये जो बॉल है ना ये रेस्ट पे है लेकिन हमने इसको रिलीज कर दिया है, अब ये मूव करना स्टार्ट करने वाली है। अब इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं है, बिकॉज अगर कोई बॉडी रेस्ट पे हो और आप नेट फोर्स भी जीरो कर दो फिर तो वो बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी हमेशा के लिए। बट दिस बॉल इज नॉट गोइंग टू रिमेन एट रेस्ट। ओके। अब आप ये देखो, क्या ये बोलना ठीक है क्या कि इसका वर्टिकल में एक्सीलरेशन जीरो होगा? आपने ये तो किया कि वर्टिकल में फोर्स जीरो किया, टी cos थीटा को एमजी से बैलेंस कर दिया, मतलब आपने वर्टिकल फोर्स जीरो किया। वर्टिकल फोर्स जीरो करने का मतलब यू आर सेइंग कि वर्टिकल एक्सीलरेशन जीरो है। क्या इसका वर्टिकल एक्सीलरेशन जीरो है अभी? क्या इसकी वेलोसिटी वर्टिकल में जीरो ही रहेगी? नहीं रहेगी ना, ये तो वर्टिकल में वेलोसिटी गेन करेगी कुछ देर बाद में। तो हमें क्या पता वर्टिकल में इसका एक्सीलरेशन है या नहीं है? तो वो जो जिस चीज के बारे में हम श्योर है ना वो ये है कि ये सर्कल में तो मूव करेगी ही करेगी, दैट इज फॉर श्योर। और सर्कल में अगर मूव करेगी ना तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन तो v स्क्वायर बाई आर होता है, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। और v अभी जीरो है, इसका मतलब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जीरो होगा ही होगा, ये सर्टेनली बोल सकते हैं। ठीक है। वर्टिकल एक्सेलरेशन जीरो इसलिए नहीं है बिकॉज इस इंस्टेंट पे ये जो बॉल है इसका नेट एक्सेलरेशन है वो केवल ये होगा ए टेंजेंशियल वाला। बिकॉज वैसे तो नेट क्या होता है, नेट होता है रूट ओवर ए टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस ए सेंट्रिपिटल स्क्वायर, है ना। बट अभी ए सेंट्रिपिटल जीरो है तो नेट इज ए टेंजेंशियल। और अब देखो इस ए टेंजेंशियल का हॉरिजॉन्टल में भी कंपोनेंट आएगा और वर्टिकल में भी कंपोनेंट आएगा। तो वर्टिकल में जो एक्सेलरेशन है वो जीरो नहीं है, which is why you cannot do this। okay, which is why you see how important it is to understand circular motion carefully। कि सर्कुलर मोशन आते ही फोर्सेस को ब्रेक कैसे करते हैं, एक्स वाई वैसे नहीं ब्रेक करते, फोर्स को ब्रेक करते हैं अपन along tangent and along radius so that we can get centripetal and tangential forces। okay, तो ये फर्स्ट का आंसर और ये सेकंड का आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन जो है वो सिंपल है। थर्ड जो है इट इज बेस्ड ऑन वर्क एनर्जी थ्योरम। फर्स्ट वी विल हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन इट बिकम्स वर्टिकल। तो थर्ड के लिए
Let's use conservation of mechanical energy. U initial plus K initial equals to U final plus K final. You can also use this. Work done by all forces is delta K. और हम जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो उसमें हम एक ट्रिक भी सीखेंगे, जिससे ये होगा कि अपने को ये दोनों ही लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा एक लाइन में आंसर लिखेंगे हम कि फाइनल स्पीड क्या आने वाली है, ठीक है। बट अभी वी आर नॉट स्टडिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो अभी एक बार हम इसको सॉल्व करते हैं पूरा। ओके, तो इनिशियली बॉल यहाँ पे थी, फाइनली बॉल यहाँ पे है, और आप जानते हो कि व्हेन यू आर यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यू हैव टू अज्यूम जीरो पोटेंशियल एनर्जी समवेयर। तो ये काम करते हैं, हम यहाँ जीरो मान लेते हैं, ठीक है। दिस इज आवर रेफरेंस पोटेंशियल। यहाँ पे जीरो मानते ही यू फाइनल तो जीरो हो गया, बिकॉज ये फाइनल पोजीशन है और मैं यहाँ पे यू को जीरो मान रहा हूँ। सो व्हाट विल बी यू इनिशियल? यू ऑल्सो नो कि अगर आप किसी भी लेवल पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं तो उससे h हाइट ऊपर एनर्जी होती है प्लस mgh, और उससे h हाइट नीचे एनर्जी होती है माइनस mgh। आई होप दिस मच यू नो फ्रॉम वर्क पावर एनर्जी चैप्टर। तो ये जो इनिशियल पोजीशन है वो जीरो के ऊपर है ना, तो एनर्जी प्लस में आएगी, और प्लस mgh आएगी, जहां पे h क्या होता है? h होता है ये, इससे कितना हाइट ऊपर है। तो यहाँ पे u है वो है प्लस mgh। अभी h कितना है वो हम निकाल लेते हैं। तो देखो ये l है और ये एंगल थीटा दिया था मैंने आपको। सो देखो इस ट्राइंगल को देखो आप जरा, इस ट्राइंगल में ये l है ना, तो ये कितनी लेंथ आएगी? ये लेंथ आएगी l cos थीटा, और ये l cos थीटा है तो ये कितनी लेंथ बचेगी आप? सो देखिए पूरी लेंथ तो अभी भी l ही है, और ये l cos थीटा हो गया, तो जिसको मैंने h लिखा है ना वो h आ जाएगा l माइनस l cos थीटा। So what is u initial? U initial is mgh, k initial is 0 because it was released from rest, and k final is half mv square, जहां पे इसकी स्पीड को यहाँ पे आप v मान लीजिए, बिकॉज यहाँ पे बॉल के पास में कुछ स्पीड होगी। तो ये मैंने लगाया कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। m से m कैंसिल, g h को लिखो l माइनस l cos थीटा, सो l 1 माइनस cos थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय 2, so we get v square equals to 2gl 1 minus cos थीटा। ओके, अब देखो हमें टेंशन फाइंड करनी है ना, तो लेट्स ड्रॉ एफपीडी। इस पोजीशन पे टेंशन आएगी अपवर्ड में T, और mg फोर्स नीचे की तरफ आएगा। अब देखो फिर से मोशन सर्कुलर है, सर्कुलर मोशन है तो सेंटर की तरफ जो फोर्स आएगा उसको लिखो, तो सेंटर की तरफ फोर्स आएगा T माइनस mg, बिकॉज T सेंटर की तरफ है, mg अवे है, तो T माइनस mg इज नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तो r की जगह तो l लिखेंगे अपने आप, ओके। सो mv स्क्वायर बाय l जब करोगे आप तो क्या आएगा? देखो ये v स्क्वायर बाय l जाएगा 2g, मतलब जस्ट पुट v स्क्वायर एज 2gl 1 minus cos थीटा, सो यू विल गेट 2mg 1 minus cos थीटा, and therefore tension is 3mg minus 2mg cos theta. Okay, so this is the answer. Okay, so hope you understood a few more things about circular motion. In the next video, we will solve a few more questions on the same topic. Okay, so see you there. Have a nice day, all of you.